Hi everyone. So let us just see one more sample paper for class 7th English जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके लिए 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर के लिए प्लीज आप व्हाट्सएप पीडीएफ वगैरह में चाहिए, नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का या पूरे बुक का, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सैंपल पेपर्स के भी पीडीएफ चाहिए, सॉल्व और अनसॉल्व, तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जानकी स्टडी कॉर्नर पे भी दूसरे पीडीएफ के सेट्स अपलोड हो रहे हैं, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइसेस जो जहां पर दी होगी केयरफुली देखना है और वैसे ही आंसर करना है। फिर आंसर्स नीटली और क्लियरली लिखने हैं। तो सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे। 15 मार्क्स का सेक्शन ए है। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, पहले वो रीड करते हैं और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 8 मार्क्स है। Arunima Sinha's journey is a story of courage and determination. After losing her leg in a tragic accident, she refused to give up. उन्होंने हार नहीं मानी थी, है ना। Instead of feeling defeated, she decided to climb Mount Everest. हारने की बजाय उन्होंने क्या सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करूंगी। With the help of prosthetic leg and a rigorous training, she worked tirelessly toward her goal. Her training was not easy. She faced physical pain and mental challenges. However, her strong will and positive mindset helped her overcome every obstacles. उनका जो mindset था इतना positive था कि किसी भी तरीके के obstacle यानी रुकावटें आ रही थी तो उससे लड़ पा रही थी। 2013 में she successfully reached the summit of Mount Everest, becoming the first Indian female amputee to achieve this feat. Her achievement is not just about climbing a mountain, it is about conquering fear. Conquering मतलब जीत हासिल करना, डर के ऊपर, डाउट के ऊपर, limitations के ऊपर. Today around inspires millions of people around the world to believe in themselves and never give up. चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, आंसर एक साथ ही देखेंगे, अभी आप खुद से मार्क करिए। अरुणिमा सिन्हा lost her leg in a war, train accident, sports event या storm. She decided to climb Mount Kilimanjaro, Mount Elbrus, Mount Everest या Mount Vinson. She became the first Indian female amputee to win an Olympic medal, climb Mount Everest, join the army, या write a book. The word rigorous, rigorous मतलब क्या होता है? Easy, strict and demanding, joyful या careless. Then her achievement teaches people. ये इनकी जो achievement है लोगों को क्या सिखाती है कि risk avoid करना, give up easily, believe in themselves, fear challenges. The tone of passage is critical, inspiring, humorous या negative. इसी में second question है answer the following question briefly. तो इसमें दो question है एक मार्क के. What helped Arunima overcome her challenges and why is her story inspiring? Okay, now second इसमें दिया हुआ है एक extract दिया है पोएम का, रीड करना है, 7 मार्क्स का है. My heart is warm with the friends I make and better friends I'll not be knowing, yet there isn't a train I wouldn't take, no matters where it's going. So ये हमने लास्ट वाली यूनिट का ये पोएम है वहां से लिया है। 4 क्वेश्चन के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। माई हार्ट इज वार्म, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एंग्री, फुल ऑफ लव, अफ्रेड या फिर कंफ्यूज्ड. स्पीकर वुड टेक अ ट्रेन ओनली टू नोन प्लेसेस, only with friends, no matter where it goes, only during the day. The train symbolizes danger, adventure, illness या silence. Then the tone of stanza is joyful, enthusiastic, sad or fearful or angry. अब इसमें दो क्वेश्चन है, डेढ़ नंबर के हैं, मतलब 1.5. What does the speaker feel about her friends? What does this stanza reveal about speaker's attitude towards travel? Okay. Now section B यहाँ दिया हुआ 15 मार्क्स का. इसमें पहला क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग परमिशन टू ज्वाइन एडवेंचर क्लब ऑफ योर स्कूल. या फिर इसमें एक ऑप्शन दिया है एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को डिस्क्राइबिंग हाउ आर्म फोर्सेस हेल्प ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 7 मार्क का है. आपको या तो डायमेंटी पोएम लिखना है कनेक्टिंग रीडिंग एंड एडवेंचर, या फिर एक नोट लिखना है. तो ड्राफ्ट अ नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड 50 से 60 वर्ड में फॉर ब्रेव सोल्जर्स एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन फॉर देयर सर्विस. नाउ सेक्शन सी ग्रामर है 15 मार्क्स का. तो पहला फिल इन द ब्लैंक से आर्टिकल्स फिल करने हैं 5. अरुणिमा क्लाइम्ड डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. शी रिसीव्ड डैश पद्मश्री अवार्ड. शी इज डैश इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल. वी सॉ डैश इंजीनियर गाइडिंग द ग्रुप. डैश माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया. नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करना है. 5 है Arunima said, I will climb Mount Everest. The teacher said, women of valor inspire us. Mother said to Ravi, finish your homework. या finish your work. The captain said, our team won the match. The guide said, this is safest route.
देन नेक्स्ट इज कंजंक्शन, इन्हें हमें बिकॉज, दो, व्हेन, अनलेस, सो, दैट इससे ज्वाइन करना है। कौन सा किस में आएगा आप रीड करके सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे शी ट्रेन हार्ड डैश शी कुड अचीव हर गोल, dash she was tired she continued climbing, we will miss the train dash we hurry, the dog barked dash it heard a sound, she succeeded dash she worked with determination। नाउ नेक्स्ट है 15 मार्क्स का लिटरेचर वाला पार्ट है, सेक्शन डी, जिसमें आपकी बुक से जो चैप्टर से वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के, 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखना है। व्हाई इज नेशनल वॉर मेमोरियल इंपॉर्टेंट, हाउ डिड बचेंद्री पाल मोटिवेट अरुणिमा, व्हाट डज द पोएम माय डियर सोल्जर्स हाईलाइट अबाउट सोल्जर्स लाइफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, 80 से 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, 6 मार्क्स का है। या तो पहला इसमें ऑप्शन है ना, या तो 1 अरुणिमा सिन्हा इज अ बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस, जस्टिफाई विद एग्जांपल, या फिर लिखना है हाउ डज द पोएम ट्रैवल, एक्सप्रेस कर रहा है स्पीकर के फैसिनेशन विद ट्रेन्स। ओके, सो 9 क्वेश्चन है इसमें। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आंसर्स देख लेते हैं, पहले ट्राई करिएगा पॉज करके खुद से सॉल्व करने का। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग वाला पैसेज हमने अरुणिमा सिन्हा वाला पढ़ा था, चलिए इसके आंसर देखते हैं। Arunima Sinha lost her leg in a train accident. She decided to climb Mount Everest. She became the first Indian female amputee to climb Mount Everest. Then word rigorous means strict and demanding. Her achievement teaches people to believe in themselves. Tone कैसा है पैसेज का, इंस्पायरिंग। देन यहाँ पे 2-2 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। नाउ अब ये 2 क्वेश्चन थे, व्हाट हेल्प अरुणिमा ओवरकम हर चैलेंज। सो अरुणिमा ओवरकेम हर चैलेंजेस विद द हेल्प ऑफ हर स्ट्रॉन्ग विल पावर, इच्छा शक्ति जो थी उनकी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट, रिग्रेस ट्रेनिंग, इसकी वजह से वो डिटरमाइंड हुई और उन्होंने अपना गोल अचीव किया। व्हाई इज हर स्टोरी इंस्पायरिंग, उनकी स्टोरी जो इंस्पायरिंग क्यों थी। हर स्टोरी इज इंस्पायरिंग बिकॉज डिस्पाइट लूजिंग हर लेग शी डिड नॉट गिव अप एंड सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, प्रूविंग दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल विद डिटर्मिनेशन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन था, हमें एक्सट्रैक्ट के आंसर देने थे। माई हार्ट इज वार्म, इसका मतलब है फुल ऑफ लव। देन द स्पीकर वुड टेक अ ट्रेन, कहीं पर भी वो जाना चाहेंगे, है ना, नो मैटर वेयर इट गोज। देन द ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन का मतलब किस चीज से सिंबलाइज किया गया है, एडवेंचर से। टोन कैसा है स्टेंजा का, जॉयफुल एंड एंथुसियास्टिक। नाउ 2 क्वेश्चन थे, व्हाट डज स्पीकर फील अबाउट हर फ्रेंड्स। तो स्पीकर फील्स डीपली अफेक्शनेटेड एंड ग्रेटफुल टुवर्ड्स हर फ्रेंड्स, शी बिलीव दैट शी कुड नॉट फाइंड बेटर फ्रेंड्स देन द वन शी ऑलरेडी हैज। देन व्हाट डज दिस स्टेंजा रिवील अबाउट स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड ट्रैवल। तो स्टेंजा रिवील्स दैट स्पीकर इज एडवेंचरस एंड क्यूरियस, ready to take any train no matter where it goes, which shows her excitement and love for travel. Now नेक्स्ट सेक्शन है बी, इसमें राइटिंग वाला पार्ट था, फॉर्मल लेटर लिखना था या सेकंड वाला जो ऑप्शन था, तो पहले फॉर्मल लेटर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल एबीसी पब्लिक स्कूल, जो भी आपका स्कूल है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन एडवेंचर क्लब, रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7C, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एडवेंचर एक्टिविटीज सच एज ट्रैकिंग, हाइकिंग एंड कैंपिंग। I believe that joining the adventure club will help me build confidence and develop physical fitness. I request you to kindly grant me permission to become a member of adventure club. I assure you that I will participate actively and follow all rules. थैंक यू। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे योर सिंसियरली के बाद, ठीक है ना। इसमें कैसे मार्क्स मिलते हैं, तो जो फॉर्मेट है, अगर सही से आपने लिखा कहाँ कितनी लाइनें छोड़नी है तो 2 मार्क्स, कंटेंट जो आप लिख रहे हैं बीच का जो आपका बॉडी है लेटर का 4 मार्क्स, और एक्सप्रेशंस के लिए 2 मार्क्स। अब नेक्स्ट है, जैसे ड्राफ्ट करना था एक नोट हमें ग्रैटिट्यूड ऑफ सोल्जर्स के लिए, ब्रेव सोल्जर्स के लिए। सो डियर सोल्जर्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फलेस सर्विस टू आवर नेशन. You guard our borders day and night, facing harsh weather and dangers without fear. Because of your sacrifices, we live safely and peacefully. Your courage, dedication, and love for the motherland inspires us every day. Thank you for protecting our country. ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट का 4 है। नाउ ग्रामर वाला पोर्शन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में एक ही हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, तो वहां पे द आएगा। पद्मश्री अवार्ड, कोई एक फेमस अवार्ड है ना, तो द आएगा। इंस्पायरिंग में आई है, आई वाविल है तो एन आएगा। इंजीनियर में ई है तो एन आएगा।
माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, द नहीं आएगा, है ना, तो ब्लैंक पे आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं कि भरना ही है सारे ब्लैंक्स आए तो। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना था, तो अरुणिमा सेड दैट शी वुड क्लाइम माउंट एवरेस्ट, है ना, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है, सेड दैट, ठीक है, और यहाँ पे ये वुड आ जाएगा, चेंज हो जाएगा वर्ब में। टीचर सेड दैट women of valor inspired us. Then next is mother advised Ravi to finish his work. The captain said that their team had won the match. The guide said that that was the safest route. नाउ कंजंक्शन जो फिल करने थे, तो पहले में सो दैट आएगा, शी ट्रेन्ड हार्ड सो दैट शी कुड अचीव हर गोल, दो शी वॉज टायर्ड शी कंटिन्यूड क्लाइंबिंग, वी विल मिस द ट्रेन अनलेस वी हरी, द डॉग बार्क्ड व्हेन इट हर्ड अ साउंड, शी सक्सीडेड बिकॉज शी वर्कड विद डिटर्मिनेशन। Now section D देख लेते हैं, तो why is National War Memorial important? It is important because it honors the brave soldiers who sacrificed their lives for the country. It reminds citizens of the cost of freedom and preserve the memory of fallen heroes. How did Bachendri Pal motivate Arunima? So she motivated by telling her that she had already conquered the Everest within herself. She instilled confidence in her and encouraged her to believe in her inner strength. नाउ माय डियर सोल्जर्स पे कैसे हाईलाइट हुआ है, सोल्जर की लाइफ को किया गया हाईलाइट। सो पोएम हाईलाइट्स द डेडिकेशन, सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स। इट शोज हाउ दे गार्ड द नेशन इन हार्श कंडीशन एंड सेक्रीफाइस देयर यूथ फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री। नाउ नेक्स्ट है जो 80 से 100 वर्ड में हमें आंसर लिखना था, तो इसमें दो ऑप्शन थे, तो पहला मैंने लिख के बताया, अरुणिमा सिन्हा इज अ बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस, जस्टिफाई। तो अरुणिमा सिन्हा इज अ बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस बिकॉज शी डिड नॉट लेट हर फिजिकल डिसेबिलिटी स्टॉप हर फ्रॉम अचीविंग हर ड्रीम्स. After losing her leg in a tragic accident, she decided to climb Mount Everest. With determination, courage, and rigorous training, she achieved her goal. Her success shows that strong willpower and hard work can overcome any difficulty. She inspires millions to believe in themselves and never give up. Okay, so with this, students, we are done with this sample paper. सो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कनेक्ट मी ओवर द व्हाट्सएप। दूसरे वाले चैनल पे नेक्स्ट इसका सेटअप लोड हो गया है, तो वहां जाकर आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay, so we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.